اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبب کیا ہے تو اس کو خود سمجھتا ہے، سبب کیا ہے تو اس کو خود سمجھتا ہے۔ زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، جہاں میں جوہر اگر کوئی آشکارا ہو، جہاں میں جوہر اگر کوئی آشکارا ہوا، کلندری سے ہوا ہے تونگری سے نہیں۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید بخیر۔ آج ہم اردو درسی کتاب جماعت دہم کی سبق نمبر 7 کا مشقی حل کریں گے۔ اسٹوڈنٹس، سوال نمبر 1 مختصر سوالات کے جوابات ہیں۔ اس کے کل 5 اجزاء ہیں۔ الف، چاندنی چوک میں فقیر کا تقریر کا لب لباب کیا تھا؟ چاندنی چوک میں گزرنے والے فقیر کی تقریر کا لب لباب یہ تھا کہ اے مسلمان بھائیوں، میں آفت کا مارا 7 بچوں کا باپ ہوں، میں محتاج ہوں، میں غریب الوطن ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے وطن واپس چلا جاؤں، میرا کوئی دوست نہیں، میری سنو، میں پردیسی ہوں۔ اسٹوڈنٹس، بے جزو مصنف پر اس فقیر نے کیا اثر کیا؟ جواب، مصنف نے جب اپنی حالت کا مقابلہ فقیر سے کیا تو بہت سے معاملات میں اسے خود سے بہتر پایا۔ مصنف کے خیال میں فقیر کا کوئی دوست نہ ہونا اس کے حق میں نعمت تھا۔ جیم جزو، مصنف کو اپنے بے تکلف دوست بڑبڑیا سے کیا شکایت ہے؟ مصنف کو اپنے بے تکلف دوست بڑبڑیا سے، جس کا نام احمد مرزا ہے، یہ شکایت ہے کہ جب وہ مصنف سے ملاقات کو آتے ہیں تو شور مچاتے ہوئے آتے ہیں، چیزیں الٹ پلٹ کرتے ہیں، ان کا آنا بھونچال کے آنے سے کم نہیں ہوتا۔ وہ اپنے جوش میں مصنف کا ہاتھ اس قدر دباتے ہیں کہ ان کی انگلیوں میں درد ہونے لگتا ہے۔ مزاج پوچھنے کے بعد وہ جلد ہی رخصت ہو جاتے ہیں، مگر مصنف کے کل خیالات بھی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ دال جزو ہے، محمد تحسین کی گفتگو کا محور کیا ہوتا ہے؟ جواب، محمد تحسین کی گفتگو کا محور ان کی بیوی بچے اور ان کی بیماری ہوتا ہے۔ مصنف کتنی ہی کوشش کر لیں مگر تحسین اس مضمون سے باہر نہیں نکلتے۔ ہے جزو ہے، مصنف کے کون سے دوست ادب کے زیادہ دل دادا ہیں؟ جواب، مصنف کے دوست شاکر خان صاحب، جو موضع سلیم پور کے رئیس اور ضلع بھر میں نہایت معزز آدمی ہیں، ادب کے زیادہ دل دادا ہیں۔ اسٹوڈنٹ، سوال نمبر 2 کی طرف پڑھتے ہیں۔ سبق کے متن کو نظر رکھتے ہوئے آپ درست جواب پر ٹک یعنی درست کا نشان لگائیں گے۔ الف جزو ہے، آفت کا مارا فقیر کتنے بچوں کا باپ تھا؟ جی، اس کا جواب کیا ہے؟ جی ہاں، بالکل درست بتایا آپ نے، تیسرا جزو ٹھیک ہے، 7 بچوں کا۔ بے جزو، مصنف نے کس مصیبت کو فقیر کے لیے نعمت تصور کیا ہے؟ اس کا دوسرا جواب درست ہے۔ کون سا؟ جی ہاں، بالکل، دوست نہ ہونا۔ جیم جزو، مصنف نے کس دوست کو بڑبڑیا دوست کہا ہے؟ جی، دوسرا جواب درست ہے۔ کون سے دوست ہیں؟ احمد مرزا۔ شاکر صاحب مصنف کو لے گئے، کہاں لے گئے؟ جی، آپ کو تو ازبر ہو چکا، یہ پہلا ہی اس کا جواب درست ہے، سلیم پور۔ ہے جزو ہے، مصنف کا دوست زیادہ بے تکلف اور شور مچانے والا ہے، کون سا دوست؟ جی ہاں، بالکل، پہلا ہی درست ہے، احمد مرزا۔ اگلا اسٹوڈنٹ دیکھیے، واؤ جزو، مصنف کے دوست انہیں راجہ صاحب سے ملوانے کہاں لے جانا چاہتے تھے؟ جی ہاں، چوتھا جزو ٹھیک ہے، احمد آباد۔ زے دیکھیے، مصنف جس کمرے میں ٹھہرائے گئے اس کی کھڑکی کھلتی تھی، ویری گڈ، آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہے، تیسرا جزو ٹھیک ہے، پائیں باغ میں۔ سوال نمبر 3 ہے،
मतन की रोशनी में दुरुस्त लफ्ज़ चुनकर खाली जगह पुर कीजिए। अलिफ, चांदनी चौक में सदा लगाने वाला फ़कीर डैश था, गरीबुल वतन। इसका दुरुस्त जवाब है बेजुज़्वे अहमद मिर्ज़ा की फितरत है कि वो निचला ना बैठें। निचला इसका दुरुस्त जवाब है। जीम जुज़्वे मुसन्निफ़ को लिखने पढ़ने से मना करने वाले दोस्त का नाम डैश है, शाकिर खान साहब। दुरुस्त जवाब है इसका। दाल जुज़्वे अहमद नगर के रईस का नाम डैश है, तालिब अली। दुरुस्त जवाब है इसका। हे जुज़ देखिए, मेरे अदब पसंद दोस्त का नाम, मेरे डैश दोस्त का नाम शाकिर खान है, यानी कि अदब पसंद। सो यहाँ पे अदब पसंद दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। सबक के मतन को मद्देनज़र रखकर दुरुस्त या गलत पर निशान लगाएं। दुरुस्त या गलत पर निशान लगाएंगे। मतन के मुताबिक अगर ये दुरुस्त है तो आप दुरुस्त पर, और गलत है तो गलत पर निशान लगाएंगे। चांदनी चौक में एक बदसूरत फ़कीर सदा लगा रहा था। टेक्स्ट के मुताबिक स्टूडेंट्स ये गलत जवाब है। बेजुज़्वे फ़कीर के पास सब कुछ था, इसका कोई दोस्त न था। टेक्स्ट के मुताबिक ये गलत जवाब है। अहमद मिर्ज़ा को मुसन्निफ़ ने बड़बड़िया का नाम दिया है। टेक्स्ट के मुताबिक ये एक दुरुस्त जवाब है। दालजुज़ देखिए, शाकिर खान के यहाँ स्याही की दवात खुश्क और कलम बगैर निब के था। टेक्स्ट के मुताबिक ये एक दुरुस्त जवाब है। हे जुज़्व है, शाकिर खान के भाई को मौसीकी से नफ़रत थी। टेक्स्ट के मुताबिक स्टूडेंट्स ये एक गलत जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका है सवाल नंबर 5, इक़्तिबासात की तशरीह, जो हम गाहे बगाहे कर चुके हैं। और सवाल नंबर 6 है, इस सबक का खुलासा अपने अल्फाज में लिखिए, जो हम गुज़िश्ता रोज़ कर चुके हैं। अब सवाल नंबर 7 है आपके सामने। मंदरजा ज़ैल तरकीब और मुहावरात को अपने अल्फाज में इस्तेमाल कीजिए। तरकीब व मुहावरात आपके सामने हैं, लफ्ज़ ब लफ्ज़। मैंने बूढ़े की दिल गुदास दास्तान लफ्ज़ ब लफ्ज़ सुनी। नहीं वो नज़ार, बुढ़िया नहीं वो नज़ार होने के बावजूद अपने सारे काम खुद करती थी। ज़िंदगी दूबर होना, महंगाई की वजह से गरीबों की ज़िंदगी दूबर हो गई है। निचला न बैठना, उस्मान की फितरत नामालूम कैसी है कि वो 1 मिनट भी निचला नहीं बैठ सकता। कलेजे पर पत्थर रखना, बूढ़ी माँ ने कलेजे पर पत्थर रख कर बेटे को बैरूने मुल्क भेजा। शायाने शान, ये गाड़ी आपके शायाने शान है। माथा ठनका, असलम को बेवक्त अपने पास देखकर मेरा माथा ठनका। रतबुल लिसान, सुबह सुबह परिंदे अल्लाह ताला की हम्द में रतबुल लिसान होते हैं। स्टूडेंट्स, ये मुहावरात और तरकीब को अपने आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल किया करें ताकि आपकी ज़ुबान शुस्ता होती चली जाए। स्टूडेंट्स, आगे ग्रामर के सफ़ात दिए गए हैं। सो ग्रामर के हवाले से जुमला इस्मी और जुमला फ़ेलिया की तरकीब नाहवी जो हम कल कर चुके हैं, इसको दोहराए लेते हैं। किसी जुमले के अज्जा अलग अलग करने और इनके बाहमी ताल्लुक़ को ज़ाहिर करने को तरकीब नाहवी कहते हैं। स्टूडेंट्स, ग्रामर इज़ ए इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर यू। इस दफ़ा आपके 10th के एग्ज़ाम में ग्रामर का एक हिस्सा क़वायद के लिहाज से मौजूद है। सो इस ग्रामर को भी आप अच्छे तरीके से असबर करेंगे ताकि इनमें से कोई सवाल आता है तो आप कर सकें। सो किसी जुमले के अज्जा अलग अलग करने और इनके बाहमी ताल्लुक़ को ज़ाहिर करने को हम तरकीब नाहवी का नाम देते हैं। तरकीब नाहवी करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि जुमला क्या है, जुमला इस्मिया है या जुमला फ़ेलिया है। ये आप 9th में पढ़ चुके हैं, जुमला इस्मिया है या जुमला फ़ेलिया। सो मुब्तदा ख़बर के हवाले से आप बात कर चुके हैं, फ़ेल नाक़िस के हवाले से कि जुमला इस्मिया होगा या फ़ेलिया होगा। अगर किसी शेर या मिसरे की तरकीब नाहवी करना मकसूद हो तो इसे नसर में पहले हम तब्दील करते हैं। इनकी तरतीब इस तरह होती है। जुमला इस्मिया में देखिए वही अज्जा, जुमला इस्मिया के अज्जा आपके सामने हैं। फ़ेल नाक़िस, मुब्तदा, ख़बर,
और मुतालिक खबर का इजाफा किया गया है। 9th में आपने फेल नाकस मुब्तदा खबर तक पढ़ा है। जुमला फेलिया के अज्जा हैं फेल ताम, फ़ाइल, मफ़ूल और मुतालिक खबर। ठीक है, तो मिसालें हैं अहमद होशियार है। अब तरकीब नाफी हो रही है स्टूडेंट्स। इस जुमले की किस तरह होंगी आपके सामने है। इसमें है देखा जाए तो वो फेल नाकस है, क्यों, वो बता रहा है कि ज़माना कौन सा है, काम कब हुआ है। अहमद क्या है, वो मुब्तदा है और उसकी मुतालिक खबर है होशियार, वो क्या है, वो होशियार खबर है। सो अगर इसकी हमने फ़िलहाल इस जुमले की जो हमने तरकीब नाफी की है उसमें फेल नाकस है, अहमद मुब्तदा, होशियार खबर। और दूसरा जुमला देखिए, शाहिद और अमान हाजिर थे। इस जुमले में थे फेल नाकिस है, अगेन ज़माने को बता रहा है। शाहिद और अमान मुब्तदा हैं और हाजिर इसके मुतालिक ख़बर है। बताया गया है कि इस जुमले की कैफियत या हालत उन से मुतल्लिका क्या है। अब जुमला फेलिया की मिसाल देखिए, जमीला किताब पढ़ती है। पढ़ती है ये फ़ेल है, जमीला फ़ाइल है और किताब मफ़ूल है जिस पर काम वाक़या हुआ। इकबाल ने नून मार्केट से नया कलम ख़रीदा, ये अगला जुमला है। ख़रीदा फ़ेल है, काम को ज़ाहिर कर रहा है। इकबाल फ़ाइल है जिस पर काम वाक़या हो, जिसने काम किया है। और ने अलामत फ़ाइल है क्योंकि फ़ाइल को के साथ इसके ज़रिए फ़ाइल को वाज़े किया गया है, ये फ़ाइल की अलामत है। इकबाल ने, ठीक है। सो मून मार्केट मजरूर है और से क्या है, हरफ जार है। से, मैं, ने, ऊपर नीचे वगैरह ये हरूफ जार हैं, आप जानते हैं। सो मून मार्केट से मुतालिक फेल, नया सिफत है, ठीक है। कलम मौसूफ है जिस पर काम वाक़या हुआ है। नया कलम मफ़ऊल है, कलम मौसूफ हुआ, नया कलम क्या हुआ, मफ़ऊल जिस पर काम वाक़या हुआ। ये जुमला क्या हुआ, फेलिया हुआ, ठीक है, क्योंकि इसमें फेल। अब आप दर्ज झैल जुमलों और मिसरों की तरकीबें नाहवी करेंगे। शाहरुख इस असलम का भाई है। शमा हर रंग में जलती है सहर होने तक। तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। राफिया और मोमिना किताबें ख़रीदने गईं। शहरयार बीमार है। सो पहले है तरकीब नाहवी में अलिफ, शाहरुख असलम का भाई है। तरकीब नाहवी के हवाले से शाहरुख मुब्तदा है, असलम का भाई खबर और है क्या है, फेल नाकिस है, ठीक है। आसानी से कर जाते हैं स्टूडेंट्स, गौर से करते चले जाइए। शमा हर रंग में जलती है सहर होने तक, ये मिसरा है। सो इसको हम देखते हैं तरकीब नाहवी में। शमा मुतालिक खबर है। देखिए पहले बात हुई है कि अगर शेर हो तो पहले हम उसको नसर में बदलेंगे, तो पहले हम इसको नसर में बदलेंगे। नसर क्या होगी इसकी, शमा हर रंग में सहर होने तक जलती है। अब पहले आ गया शमा। सो शमा क्या है, मुतालिक खबर है। जलती है फेल है, सहर होने तक खबर और तक हरफ है। और ये कौन से हरफ हैं, हरफ जार हैं। जीम देखिए, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। तरकीब नाहवी करेंगे तो तंदुरुस्ती मुब्तदा हो गई, हज़ार नेमत खबर हो गई और है फेल नाकस है। अगला है राफिया और मोमिना किताबें ख़रीदने गईं। राफिया और मोमिना फ़ाइल हैं और हरफ इजाफत है। हम जानते हैं हरफ इजाफत और हरूफ अतफ़ी में वाव और आते हैं, सो हरूफ अतफ़ी हैं। किताबें मौसूफ़ हैं क्योंकि जिनकी सिफत बयान की गई है वो मौसूफ़ कहलाते हैं। ख़रीदने फ़ेल हैं और गई खबर है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगला देखिए, शहरयार बीमार है। तरकीब नाहवी इसकी क्या होगी, शहरयार मुब्तदा है, बीमार खबर है फेल नाकिस है। स्टूडेंट्स कुछ भी मुश्किल नहीं है, आप इन चीज़ों को पहले से अच्छी तरीके से जानते हैं, बस इसको ध्यान से करते चले जाइए। पहले जैसे मैंने ग्रामर पढ़ाते हुए आपको कहा कि आपको तारीफ़ पता होनी चाहिए, मिसालें आनी चाहिए, कुछ मुश्किल नहीं है। तरकीब नाहवी अगर आपको आती है तो कभी भी ज़िंदगी में आप ग्रामर के हाथों तंग नहीं होंगे, रास्ते आपके खुलते चले जाएंगे। सो तफवीज़ी काम आज का है। सवाल नंबर 1 कॉपी पर आप खुशखत तहरीर करेंगे और ग्रामर को असबर करेंगे स्टूडेंट्स। बाकी सारा काम आपका ये निगलेक्ट नहीं होना चाहिए, यकीनन नहीं होना चाहिए। इसको मारूसी के लिए अच्छे तरीके से तैयार कीजिए। उम्मीद वासिक है कि आप
اپنا کام اچھے طریقے سے یاد کر رہے ہوں گے اور خوش اچھی سے تحریر کر رہے ہوں گے۔ والسلام، مسدرہ ثنا۔